So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. And इस particular video के अंदर हम cover करने वाले enums and pattern matching. So, बहुत ही easy and exciting yet important topic होने वाला है. End तक जरूर देखना. And let's start with the enums in Rust. So, enums and pattern matching. तो enums क्या होते हैं? तो अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल टाइपस्क्रिप्ट या फिर जावा, you have already seen enums, right? In this chapter we'll look at enumerations. Enum का full form है. Enums allow you to define a type by enumerating its possible variants. Variants keyword यहाँ पर बहुत important है. It's not a keyword, I mean to say the term is very important. Variants. First we will define and use an enum to show how enum can encode meaning along with the data. Next, we'll explore a particularly useful enum called option, which expresses a value that can either be something or nothing. Then we'll look at how pattern matching, the match expression, makes it easy to run different codes on different values of enum. Finally, we'll cover if let construct. Finally, we will cover how the if let construct is another convenient and concise idiom available to handle enums in the code. ठीक है, चलते हैं डिफाइनिंग एंड enum के ऊपर. दैट किस तरह से हम enum को डिफाइन कर सकते हैं. वेयर स्ट्रक्ट्स गिव यू अ वे ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर रिलेटेड फील्ड्स एंड डेटा लाइक रेक्टेंगल विद इट्स विड्थ एंड हाइट. So where structs give you a way of grouping together related fields and data like rectangle with its width and height, enum gives you a way of saying a value of a possible set of values. Okay, इसका क्या मतलब? For example, we may want to say that rectangle is one of a set possible shapes that also includes circle and triangle. That means आपके पास एक enum हो सकता है shapes जिसका एक variant हो सकता है rectangle, circle या फिर triangle. Okay. To do this, Rust allows you to encode these possibilities as an enum. Let's look at a situation where we might want to express encode and see why enums are useful and more appropriate than structs. तो यहाँ पर हम ना IP एड्रेसेस की एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, IP एड्रेस आपको पता है कैसा होता है. एक IPv6 होता है, IPv4 होता है. करंटली टू मेजर स्टैंडर्ड्स हैं IP एड्रेसेस के, वर्जन 4 एंड वर्जन 6, IPv4, IPv6. बिकॉज देयर आर ओनली पॉसिबल बिकॉज देयर are the only possibilities for an IP address that our program will come across, we can enumerate on all possible variants, which is where enum gets its name. ठीक है, तो enum को समझने के लिए IP एड्रेसेस को समझते हैं. एन IP एड्रेस कैन ईदर बी ऑफ वर्जन 4 और IPv6, बट बोथ एट द सेम टाइम नॉट पॉसिबल. The property of an IP address makes the enum's data structure appropriate because an enum value can only be one of its variant. Both version 4 and 6 are still fundamentally IP addresses, so they should be treated as the same type when the code is handling situations that apply to any kind of IP address. ठीक है, तो यहाँ पे वॉट दे आर सेइंग कि देखो, अगर चाहे वो एक IPv4 है, IPv6 है, दे आर स्टिल फंडामेंटली एन IP एड्रेस ओनली, तो इसकी हैंडलिंग सेम होनी चाहिए. तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. तो ये पुराना कोड है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम बंद कर लेते हैं. एंड लेट मी जस्ट स्पिन अप माई टर्मिनल. एंड टर्मिनल के अंदर सीधी करते हैं रस्ट लर्निंग्स के अंदर, एंड हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे. सो कार्गो न्यू enum. ओके, सॉरी, कार्गो न्यू, एंड इसको हम बोलते हैं enums. cd करते हैं enums के अंदर, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं कोड डॉट, सो दैट इट ओपन्स इन VS कोड. सो इसको हम कर लेंगे एक्सपैंड. सो एंड हम स्क्रीन को भी अरेंज कर लेते हैं सो दैट एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड. सोर्स मेन. तो अब हमें ना एक IP एड्रेसेस को हैंडल करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक फंक्शन बना लेते हैं. इन्होंने कोई एग्जांपल तो नहीं दी ना, कोई एग्जांपल है, बढ़िया. ठीक है, एक राउटिंग बना लेते हैं, FN राउट. ओके, किस एड्रेस किस IP पे आपको राउट करना है. तो लेट्स से ये ना एक IP लेता है एज अ स्ट्रिंग. एज ऑफ नाउ हम ना इसको एक एंड str कर लेते हैं. आपको स्लाइसेस के बारे में तो पता ही है ना. तो इस IP एड्रेस, बिकॉज अल्टीमेटली ना IP एड्रेस एक स्ट्रिंग ही होता है. अगर आप देखो, एक IP एड्रेस क्या हो सकता है, 192.168.1.1 हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है 10.2.3.4. तो अल्टीमेटली IP एड्रेस के इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग, है ना. पहला चीज़ हो सकता है स्ट्रिंग. तो हम यहाँ पे println कर देते हैं, दैट println दैट राउटिंग द रिक्वेस्ट टू IP, एंड यहाँ पर हम अपने IP एड्रेस को प्रिंट कर लेते हैं. ठीक है, तो बहुत ही एक सिंपल सा बच्चों वाला मैंने एक प्रोग्राम बनाया. तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं राउट करो किस IP पे 1.2.3.4 पे इसको राउट कर दो.
तो अगर आप इसको रन करोगे यू कैन सी दैट राउटिंग रिक्वेस्ट टू IP 1.2.3.4। बट प्रॉब्लम ये है कि यार यहाँ पर ना मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी डाल सकता हूँ, इट शुड बी जस्ट अ वैलिड स्ट्रिंग, सो यू कैन सी IP पीयूष। तो पहली चीज़ क्या है कि दिस प्रोग्राम इज़ ओके बट यू नो इट मिसेज अ लॉट ऑफ वैलिडेशन एंड स्टफ एंड कुछ भी सेंस नहीं बनाता, इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग ना। मतलब मैं इसको IP भी क्यों बोल रहा हूँ, ये जस्ट एक स्ट्रिंग ही तो है, कुछ भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, एनिमल का नेम भी हो सकता है। तो एक सिंपल प्रोग्राम तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और इन्हांस करते हैं, थोड़ा ऑब्वियस करते हैं यूजिंग enum। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई आप मेरे को जो IP एड्रेस दे रहे हो, मेरे को तो ये भी नहीं पता है कि इस IP एड्रेस का टाइप क्या है, क्या ये एक IPv4 है या ये एक IPv6 है। तो मैं यहाँ पर एक enum बना लेते हैं उस चीज़ के लिए, enum IP kind, ठीक है, ऐसा कुछ एक बना लो, IP kind बना लो। इन्होंने क्या बनाया, IP एड्रेस kind। इसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, मैंने बोला यार इसकी एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है V4 और इसकी एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है V6। तो ये हैं इन दोनों की पॉसिबल वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को ना तुम IP एड्रेस का काइंड भी दो जिसका टाइप होना चाहिए IP एड्रेस काइंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं ऑफ काइंड एंड यहाँ पर काइंड को प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन हम काइंड को प्रिंट नहीं कर सकते बिकॉज इसके ऊपर वो डिस्प्ले ट्रेट नहीं है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इसको हम डीबग मोड में प्रिंट कर लें। सो दिस, ठीक है। अब ये बोलेगा कि यार इसके ऊपर फॉर्मेटिंग जो है, ओह सॉरी मैंने फॉर्मेटिंग गलत कर दिया, दिस। अब वो बोलेगा इसके ऊपर डीबग ट्रेट नहीं है, तो लगा देते हैं डीबग ट्रेट भी, है ना। तो डीबग ट्रेट हमने देखा था, तो हैश दिस डेराइव डीबग, ठीक है। अब इसको एक और आर्ग्यूमेंट चाहिए, दैट इज़ कि भाई किस तरह का IP एड्रेस है। तो पहले तो IP एड्रेस ठीक कर लेते हैं, लेट्स से 1.2.3.4। ये मुझे पता है दैट ये एक V4 है, तो IPv kind ::V4। तो मैंने इसको टाइप दे दिया। अब हम अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो व्हाट इट इज सेइंग, ये IP एड्रेस आया ऑफ काइंड V4। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूज़र कुछ भी डाल देगा, यहाँ पर या तो वो V4 डाल सकता है या फिर वो इसका एक वेरिएंट डाल सकता है V6। इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकता बिकॉज इट्स एन enum, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा मैं बस आपको दिखाना चाहता था enum होता क्या है। सो दिस इज़ फाइन। एन IP एड्रेस कैन ईदर बी ऑफ वर्जन 4 और वर्जन 6 बट नॉट एट बोथ आर सेम, हमने देख लिया था। सो वी कैन एक्सप्रेस this concept in the code by defining IP address kind enum and listing the possible kinds V4 V6। तो इसके दो possible kinds हैं V4 and V6, right? IP address kind is now a custom data type and we can use it anywhere। For example, हमें एक 4 का इंस्टेंस बनाना है, IPv4 kind V4 V6, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया 4 एंड मैंने यहाँ पर उसको पास कर दिया, ठीक है। तो ये एक IPv4 का काइंड है, इस तरह से भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स जस्ट एन IP एड्रेस। देखो इसका टाइप एनोटेट क्या हो रहा है, IP एड्रेस काइंड, ठीक है। नोट दैट द वेरिएंट्स ऑफ एन enum आर नेम स्पेस्ड अंडर इट्स आइडेंटिफायर। तो ये नेम स्पेस्ड होता है एंड वी कैन यूज डबल कोलन टू सेपरेट द टू। दिस इज यूजफुल बिकॉज नाउ बोथ वैल्यूज IP एड्रेस V4 एंड IP एड्रेस V6 आर ऑफ सेम टाइप IPv एड्रेस काइंड। We can then for instance define functions that take any kind। तो ये देखो एक रूट फंक्शन बनाया जिसमें IP एड्रेस का काइंड ले सकते हो आप। हमने IP एड्रेस भी ले लिया, हमने काइंड भी ले लिया, ठीक है। तो यूजिंग enums हैज़ मोर एडवांटेजेस, नॉट ओनली दिस, इसके और भी एडवांटेजेस हैं। थिंक अबाउट मोर IP एड्रेसेस। एट द मोमेंट वी डोंट हैव अ वे टू स्टोर द एक्चुअल IP एड्रेस। अभी हम ना क्या कर रहे हैं, सिर्फ ना वेरिएंट को स्टोर कर रहे हैं। वेरिएंट क्या होता है, IPv4 एक वेरिएंट है, V4 एक वेरिएंट है, V6 एक वेरिएंट है। लेकिन एक्चुअल डेटा हम कहीं पर स्टोर नहीं कर रहे, ये एक्चुअल डेटा है एंड ये कुछ भी हो सकता है, तो हम गलत भर रहे हैं। हमें पता है कि IPv4 ये मतलब ABCD कुछ भी ऐसे भरता हूँ, मेरे को पता है ये गलत है बिकॉज ये एक सिर्फ एक स्ट्रिंग ले रहा है, तो हम एक्चुअल डेटा को स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, गिवन दैट यू हैव जस्ट लर्न अबाउट स्ट्रक्ट्स, यू माइट बी टेम्प्टेड टू टैकल दिस प्रॉब्लम यूजिंग स्ट्रक्ट्स, ठीक है। तो हो सकता है आप क्या कर सकते हो, आप कुछ इस तरीके का बना सकते हो, आप एक स्ट्रक्ट बना सकते हो IP का, ठीक है। एक स्ट्रक्ट बना लो कि एक IP एड्रेस है और एक IP एड्रेस के अंदर एक फील्ड तो होगी एक्चुअल IP एड्रेस की, जो कि हो सकती है एक स्ट्रिंग ओन्ड टाइप की, और इसका वेरिएंट हो सकता है, काइंड हो सकता है, विच इज़ IP एड्रेस काइंड। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअली में इस पूरे को कह सकते हैं भाई रूट करने के लिए ना तुम एक IP लो जिसका टाइप होगा IP एड्रेस। ये एक स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट के अंदर ये क्या है, एक enum है। अब देखो क्या हो सकता है, राउटिंग रिक्वेस्ट टू IP डॉट, यहाँ पर हमें इस तरह से करना होगा, तो इसको भी हटा दो। तो व्हाट आई कैन नाउ डू इज आई कैन से IP डॉट एड्रेस IP डॉट काइंड, ठीक है। सो IP डॉट काइंड, द ओनली प्रॉब्लम इज काइंड के ऊपर डिस्प्ले नहीं है, तो इसको यार डीबग मोड में ही रखते हैं। तो
debug mode. एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पर एक एड्रेस बना लेता हूँ, ठीक है, गूगल का एड्रेस बना लेते हैं. सो गूगल एड्रेस, तो हम यहाँ पे बनाएंगे कि भाई ये ना एक आईपी एड्रेस है. सो आईपी एड्रेस जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू एड्रेस है 1.2.3.4, लेट्स से जो भी आईपी है, सॉरी स्ट्रिंग बनाना है, नॉट लाइक दिस. जावास्क्रिप्ट की आदत पड़ी हुई है. सो स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम 1.2.3.4 एंड इसका हमें काइंड देना है विच इज़ आईपी एड्रेस काइंड. ये एक v4 का काइंड है एंड इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी एक गूगल एड्रेस का काइंड बन गया एंड राउट कर देंगे रिक्वेस्ट को गूगल एड्रेस के ऊपर. तो अगर आप देखोगे दैट ये कोड काफ़ी क्लीन है, ठीक है. मैं आपको बिना फॉर्मेटर के दिखाता हूँ. तो हम क्या कर रहे हैं, एक enum बना रहे हैं, एक स्ट्रक्ट बना रहे हैं, उसके बाद फंक्शन मेन में हमने गूगल का एक एड्रेस बनाया, हमने राउट कर दिया. ये राउट एक आईपी एड्रेस का टाइप लेता है जिसमें हमारे पास एड्रेस और काइंड है. तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे तो यू कैन सी दैट राउटिंग टू IPv4 काइंड 4. थोड़ा सा अगर हम पुरानी नॉलेज को और यूज़ करें, ठीक है, हम ना यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक भी बना सकते हैं, IMPL ब्लॉक भी बना सकते हैं आईपी एड्रेस के ऊपर, ठीक है, आईपी एड्रेस के ऊपर, ठीक है. एंड इसमें हम एक फंक्शन बना सकते हैं न्यू, ठीक है, एसोसिएटेड फंक्शन है, मेथड नहीं है, जो रिटर्न करेगा सेल्फ. एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब भी आपको न्यू चाहिए आप मेरे को एक तो आईपी एड्रेस दो, ठीक है, आईपी ऑफ टाइप स्ट्रिंग दे दो एंड आप मेरे को इसको एड्रेस बोल सकते हैं, दैट इज़ मोर मेक्स मोर सेंस. एंड काइंड हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे. लेट्स से हमने ना कुछ यहाँ पे वैलिडेशन लेयर लगा रखी है जो काइंड को डिटेक्ट कर लेती है, कुछ रेजेक्स लगा रखा है, तो रिटर्न कर देंगे सेल्फ एड्रेस. एंड अभी के लिए काइंड हम सोच लेते हैं कि भाई काइंड हमेशा हमारा होगा आईपी एड्रेस काइंड v4, ठीक है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैलिडेशंस लगा सकते हैं कि एड्रेस वैलिड है या नहीं. तो नाउ आई हैव अ बेटर मेथड ऑफ सेइंग, सो आई कैन से दैट हे मेरे लिए एक आईपी एड्रेस बनाओ. कैसे, आईपी एड्रेस कोलन कोलन न्यू एंड एड्रेस दे देते हैं 1.2.3.4. तो ये मेरे लिए एक आईपी एड्रेस बनाएगा, इसको स्ट्रिंग देना है. सो व्हाट आई कैन डू इज, इसमें हम स्ट्रिंग की जगह एंड str एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड एड्रेस को आई कैन जस्ट से एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी दिस इज मोर क्लीनर अप्रोच. आईपी एड्रेस न्यू, ये मैंने एड्रेस दे दिया एंड दिस प्रोग्राम विल ऑल्सो रन फाइन. तो enums के साथ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो यू कैन सी व्हाट दे आर डूइंग, आईपी एड्रेस बनाया, काइंड एड्रेस, लूप बैक बनाया, ठीक है, आईपी एंड काइंड. Now here we have defined a struct IP address that has two fields kind and that is of type IP address kind, ठीक है, which is an enum, ठीक है, and address of type string. We have two instances of the struct. The first home and the second value has IP4 and kind is associated. So the second instance is a loop back. It has other variant of this. तो हम यहाँ पर एक loop back भी बना सकते हैं. तो let loop बैक इक्वल्स भाई आईपी एड्रेस बनाकर देना मेरे को एक कौन सा, एक न्यू आईपी एड्रेस बनाओ जिसका एड्रेस क्या होगा, लेट्स से हम इसमें बोल देते हैं 127.0.0.1 लेट्स से, ठीक है, होम एड्रेस बना लेते हैं. तो इस तरह से हम बना सकते हैं. कूल, मतलब इट्स अ लूप बैक एड्रेस, तो इसको इस तरह से ही रख लेते हैं. सो व्हाट्स एवर, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट आईपी एड्रेस, ठीक है. तो अगर आपको नेटवर्किंग की नॉलेज है अच्छी तो आप इसको समझ सकते हो, बट ठीक है, अभी हम रस्ट पे फोकस करते हैं, नॉट ऑन आईपी एड्रेसेस. However, representing the same concept using with just an enum is more concise. हम इसको सिर्फ और सिर्फ enums के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं रस्ट के अंदर rather than enum inside a struct, ठीक है. हम डायरेक्टली डेटा को पुट कर सकते हैं एक enum के वेरिएंट के अंदर. कैसे, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अभी हम ना क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल कोड है जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है. हम एक enum बना रहे हैं, एक स्ट्रक्ट बना रहे हैं, स्ट्रक्ट के अंदर एक enum यूज़ कर रहे हैं. वो क्या कह रहे हैं, यार एक काम करो, सुनो, अपना स्ट्रक्ट हटाओ पहले तो, ठीक है. स्ट्रक्ट हटा दिया, स्ट्रक्ट हटा दिया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक भी हटा दो, हटा दिया तो इसको भी हटा दो, ठीक है, मतलब बिकॉज अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो इसको भी हटा दो, ठीक है. इस रूट फंक्शन को भी एक सेकंड के लिए हटा दो. तो रूट फंक्शन भी हम दोबारा लिख लेंगे. अभी के लिए समझ लो कि यार ये जो रूट फंक्शन है ये कुछ नहीं करता, ठीक है, खाली कर दो और इसको भी हटा दो. तो वी आर बैक टू दी सेम ओल्ड कोड जिसमें हमारे पास सिर्फ एक enum का काइंड है. हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई ये ना एक स्ट्रिंग डेटा भी स्टोर करेगा, v6 ना एक साथ में स्ट्रिंग डेटा भी स्टोर करेगा. दैट्स इट. अब ये enum एक स्ट्रिंग डेटा भी स्टोर कर सकता है ऑफ सम वेरिएंट, यानी कि लेट होम इक्वल्स आईपी एड्रेस काइंड, कौन सा चाहिए भाई, v4 चाहिए, इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दो, स्ट्रिंग कोलन कोलन फ्रॉम एंड इसके अंदर तुम डाल दो 1.2.3.0.0.1. अब ये एक enum भी है और इसके अंदर डेटा भी है. तो ये क्या करेगा, एक आईपी ले लेगा ऑफ आईपी एड्रेस काइंड,
तो अब हम कर सकते हैं प्रिंट ln दैट राउटिंग रिक्वेस्ट टू, कुछ डीबग लगा देते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं IP डॉट, ठीक है, यहाँ पे हम IP कर देते हैं, इसको बंद कर दो, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, इसको राउट करें, इसको हम करेंगे राउट, भाई राउट कर दो होम पे, ठीक है, होम पे हमारी रिक्वेस्ट को भाई तुम प्लीज़ रूट कर दो। तो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दैट हमने एक होम एड्रेस बनाया, ठीक है, हमने एक लूपबैक एड्रेस बनाया, एंड अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करके देखें, एक बार रन करें। सो अगर हम इसको रन करते हैं, यू कैन सी वी आर गेटिंग राउटिंग द रिक्वेस्ट टू V4 वेरिएंट, जिसका IP एड्रेस है ये एक V4 वेरिएंट है ना, ये क्या है, एक V4 वेरिएंट, नाइस, ठीक है। अब वापस चलते हैं, ठीक है, वापस चलते हैं। सो यहाँ पे वी हैव अटैच द डेटा टू ईच वेरिएंट ऑफ द enum डायरेक्टली, सो देयर इज नो नीड ऑफ एन एक्स्ट्रा स्ट्रक्ट हेयर। इट्स also easier to see another detail of how enums work. The name of each enum is a variant that we define, also becomes a function that constructs an instance of an enum. This is IP address V4 is a function call now that takes strings as an argument and returns an instance of an IP address. We automatically get this constructor function defined as a result of defining an enum. There is another advantage of using enum rather than a struct. Each variant can have different type and amounts of data associated. अगर देखा जाए तो जो V4 एड्रेस है वो है क्या, 4 स्ट्रिंग से बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और आई कैन से 4 बिट्स से बनता है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्ट्रिंग मैं इसको एक टपल भी तो बना सकता हूँ, आई कैन मेक इट अ टपल, जिसमें फर्स्ट एक नंबर है U8, सेकंड भी एक नंबर है U8, थर्ड एक नंबर है U8, फोर्थ एक नंबर है U8। तो भाई अगर तो आपको एक V4 IP एड्रेस बनाना है तो भाई आप ना मेरे को कुछ नंबर्स दोगे, 4 दैट इज 127,0,0,1 है ना। लेकिन अगर आपको एक लूप बैक एड्रेस बनाना है, लेट्स से अगर आपको एक IPv6 बनाना है, तो इसको हम बोलते हैं लूप बैक इन फॉर्मेट ऑफ IPv6। तो जैसे आप इसको V6 करोगे वो एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करेगा। स्ट्रिंग मतलब कि आपको यहाँ पर देना है स्ट्रिंग कोलन फ्रॉम, एंड यहाँ पर हम दे सकते हैं दिस वन, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ लूप बैक एड्रेस, तो इसके ऊपर भी हम रूट कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, तो ये हो गया लूप बैक। So now if I run this, you can see that routing request to V4 and V6. तो इसमें क्या है ना, मैं कुछ और नहीं डाल सकता, मेरे को वैलिड V4 टाइप डालना पड़ेगा, है ना, 127.0.0.1। तो ये 4 नंबर्स दे रहे हैं, ये टपल है, दिस इज अ टपल, ठीक है। एंड बिकॉज इट्स अ टपल हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है अभी के लिए हम इसको बस IP को प्रिंट कर रहे हैं। So this is the same example that you can see here. So यहाँ पे there's another advantage. So version 4 IP address will always have 4 numeric components that will have values from 0 to 255. And 0 to 255 के लिए U8 is the best. If we wanted to store V4 address as 4 U8 values, we can express but still express V6 as the string value. ये struct के साथ possible नहीं था, ये सिर्फ यहाँ पर ही possible है। We have shown several different ways to define structures to store different 4 and 6 variants, ठीक है। However, as it turns out, wanting to store IP addresses and encode which kind they are is so common that there is a standard library. The standard library has a definition. Let's take a look at the standard library for IP address. It has the exact enum and variants that we have defined and used, but it embeds the addresses data inside the variants in form of 2 different structs which are defined here. तो एक एक struct है IPv4 address, एक struct है IPv6 address, and फिर हम क्या कर सकते हैं, एक IP address का एक enum बना सकते हैं जिसमें V4 एक struct है, V6 एक struct है। This code illustrates that you can put any kind of data inside an enum, string, numeric types, or structs. You can even include other enum. Also, standard library types are often not much more complicated than what you might come up with. Note that even though the standard library contains a definition for IP address, we can still create our own definition without the conflict because we haven't brought the standard library definition into the scope. छोड़ दो, जैसे चैप्टर 7 में जब हम स्कोप्स मॉड्यूल्स की बात करेंगे, यूज़ कीवर्ड्स की बात करेंगे, तब समझ आएगा। बट अभी के लिए व्हाट दे आर सेइंग इज कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में भी इसकी सपोर्ट है। IPv4 एक एड्रेस है, एक्सट्रैक्ट है, ये भी एक्सट्रैक्ट है, एंड enum के अंदर रख रहे हैं। एक एग्जांपल दिखाऊं कैसा हो सकता है, जस्ट इन केस यू वांट टू सी व्हाट दे आर इज सेइंग इज कि कुछ ऐसा, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जैक्ट मत जाना आप ना, कुछ ऐसा कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट बना लो फॉर IPv4 एड्रेस। इसके अंदर लेट्स से ना आपने ऐसा रख लिया, लेट्स से एक टपल है ना, टपल स्ट्रक्ट है, तो U8 बना लिया।
अब आप क्या कर सकते हो कि यार अगर वो एक IPv4 है तो उसका ना मेरे को ये वाला वेरिएंट चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमें डीबग ट्रेड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बिकॉज हम इसको यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। और अगर वो एक IPv6 है तो एक और स्ट्रक्ट बना लो, ठीक है, एक और स्ट्रक्ट बना लो विच इज़ फॉर IPv6 एड्रेस, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक डेटा हो सकता है विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको IPv6 कर सकते हैं। तो नाउ टू क्रिएट दीज इंस्टेंसेस, एंड हाँ वी नीड अ डीबग ऑन दिस एज वेल, ठीक है। तो नाउ टू क्रिएट इंस्टेंसेस ऑफ दिस, देखो हम क्या कर सकते हैं भाई, मेरे लिए एक V4 बनाओ जिसके अंदर एक IPv4 एड्रेस का एक इंस्टेंस जाएगा जिसमें यू हैव टू पास द टपल, है ना। टपल पास करें 127.0.0 और 1, समथिंग लाइक दिस दे आर सेइंग, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी क्या जाएगा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग जाएगा। तो स्ट्रिंग ऐसे नहीं जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि वो एक IPv6 एड्रेस का एक स्ट्रिंग जाएगा। तो समथिंग लाइक दिस, मतलब यार देखो डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करना है ऑन यू, बट ठीक है सिंटैक्स को समझते हैं, सिंटैक्स कहना क्या चाहती है रस्ट, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल बढ़ते हैं, बहुत हुआ IP एड्रेसेस, ठीक है, इससे इसके बाद हम पागल हो जाएंगे IP एड्रेस का। तो लेट्स टू कैन अनदर एग्जांपल ऑफ enum। तो एक ना मैसेज enum है जिसके अंदर एक क्विट एक enum बनाते हैं, ठीक है, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं फंक्शन मेन। तो लेट्स से हमारे पास हमने ना कोई चैटिंग एप्लीकेशन या कोई गेमिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें ना हम यूज़र्स को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। किस तरीके का मैसेज हो सकता है, ठीक है, एक मैसेज का एक enum बनाते हैं, enum मैसेज। एक मैसेज का टाइप क्या हो सकता है, देखो या तो वो हो सकता है क्विट मैसेज कि भाई एक यूज़र क्विट कर रहा है, तो ये क्विट टाइप हो सकता है, एक वेरिएंट हो सकता है। या फिर वो एक मूव मैसेज हो सकता है ना, मूव मैसेज। तो मूव मतलब एग्जाम्पल ना चेस की ले लेते हैं। लेट्स आप चेस खेल रहे हो, एक मल्टीप्लेयर गेम बना रहे हो चेस। तो चेस में क्या हो सकता है, या फिर कोई और गेम में, या तो आप क्विट मैसेज सेंड कर सकते हो, आप एक मूव कर सकते हो कि यार कौन सा एक्स और कौन सा वाई मूव करना है, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। या फिर आप कुछ कस्टम मैसेज लिखना चाहते हो जिसमें आप कुछ भी एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो, या फिर आप कुछ चेंज कलर करना चाहते हो जिसमें आप 3 RGB वैल्यूज़ पास करोगे। तो ये कुछ वेरिएंट्स हो सकते हैं एक मैसेज के। एक मैसेज क्विट टाइप का हो सकता है, मूव टाइप का हो सकता है, राइट हो सकता है, या चेंज कलर हो सकता है, जिसमें अलग अलग तरह के हम डेटास ले रहे हैं। तो नाउ दिस enum हैज़ 4 वेरिएंट्स, ठीक है। क्विट हैज़ नो डेटा, मूव हैज़ फील्ड्स लाइक स्ट्रक्ट डज लाइक एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी मूव के अंदर एक्स एंड वाई डाल दिया, काइंड ऑफ लाइक अ स्ट्रक्ट। इंक्लूड राइट के अंदर एक स्ट्रिंग है और चेंज के अंदर एक I32 वैल्यूज़ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, defining an enum variants such as ones in listing 6.2, that is this one, is similar to defining different kinds of struct definitions, except enum doesn't use struct keyword and all the variants are grouped together under message type. The following constructs can hold same data as preceding enum. तो इट्स लाइक कि आपने एक स्ट्रक्ट बनाया क्विट मैसेज, आपने फिर एक स्ट्रक्ट बनाया मूव मैसेज जिसमें ये डेटा, आपने एक स्ट्रक्ट बनाया राइट मैसेज जिसमें एक टपल है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, आपने फिर एक स्ट्रक्ट बनाया चेंज करा जिसके अंदर एक टपल है। So, but if we use different structs, each of which has its own type, we couldn't write and easily define a function to take any kind of these messages as we could do in message. तो I understand कि यहाँ पर ना थोड़ा सा confusion हो रहा होगा, but don't worry, I'll make it clear. There is one more similarity between enums and structs. Just as we are able to define methods on structs using implement, we are also able to define methods on enums. तो हम क्या कर सकते हैं, हम enums के ऊपर भी फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैसेज डॉट का राइट वेरिएंट एंड उसके बाद स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम एंड m डॉट कॉल कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, जैसे हम स्ट्रक्ट्स पे करते हैं वैसे enums के ऊपर पॉसिबल है। द बॉडी ऑफ द मेथड यूजेस सेल्फ टू गेट द वैल्यू दैट वी हैव कॉल्ड ऑन। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल m जिसका वेरिएंट है एक राइट जिसकी वैल्यू है एक स्ट्रिंग एंड इज सेल्फ एंड दैट इज व्हाट सेल्फ विल बी इन द बॉडी कॉल व्हेन वी कॉल दिस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ना enums के बारे में पता लग चुका है दैट enums क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। अब यहाँ पर एक enum के बारे में बात करते हैं विच इज़ ऑलरेडी प्री बिल्ट, दैट इज ऑप्शन enum, ठीक है। हमें डिफाइन नहीं करना, ये ऑलरेडी है। दिस सेक्शन एक्सप्लोर्स द केस स्टडी ऑफ ऑप्शन। तो देखते हैं दैट ट्रस्ट के अंदर ये जो बिल्ट इन enum है ऑप्शन, ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अनदर enum डिफाइंड इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। एंड इसको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। वन थिंग आई विल टेल यू, लेट्स से लेट OP इक्वल्स ऑप्शन बनाते हैं, तो यू कैन सी दैट मेरे को इसको क्या करना पड़ रहा है, मुझे इसका एक सम वेरिएंट ले लेते हैं जिसमें हम वैल्यू देते हैं 1। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑप्शन enum के अंदर हम सम वेरिएंट को कॉल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 1। मुझे इस ऑप्शन को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द प्रीलूड। इट्स समथिंग लाइक कॉलिंग लाइक दिस। देखो जैसे हम करते हैं ना, लेट m
इक्वल्स मैसेज, मैसेज के अंदर राइट फंक्शन को कॉल करो जिसके अंदर लेट्स से अगर ये एक नंबर लेता, नंबर के लिए लेट्स से ये एक U8 लेता फॉर जस्ट एन एग्जांपल, और हम इसके अंदर पास कर देते 1, तो काइंड ऑफ देखो सिमिलर सिंटैक्स है ना, जैसे हम इस पे कॉल कर रहे हैं, जैसे हम इस पे कॉल कर रहे हैं, सिमिलर सिंटैक्स। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इंटरनली ऑप्शन कैसा दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन enum है, ऑप्शन टाइप इन कोड्स वेरी कॉमन सिनेरियोज इन विच अ वैल्यू कुड बी समथिंग और नथिंग। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू या तो हो सकती है या नहीं हो सकती, दैट इज एन ऑप्शन, ठीक है। For example, if you request the first item in a non-empty list, you could get a value. But if you request the item from an empty list, the value can be nothing. तो ऑप्शनल वैल्यूज, ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शनल वैल्यूज, ठीक है, ऑप्शनल है। Expressing this concept in terms of the type system means compiler can check whether you have handled all the cases that you should be handling, ठीक है। So programming languages design is often through in of its term which features you include, but the features you exclude are important too. Rust doesn't have the null feature that many other languages have. देखो लेट्स से आप क्या कह रहे हो कि आप ना किसी को मैसेज सेंड करना चाहते हो, लेट्स से, तो एक आपने क्या किया होगा, आपने लेट्स से एक enum बना लिया, enum नहीं, चलो एक स्ट्रक्ट ले लेते हैं बिकॉज दैट इज मोर ईजी टू अंडरस्टैंड। स्ट्रक्ट ले लेते हैं, एक मैसेज, एक मैसेज के अंदर आपके पास ना डेटा है, ठीक है। डेटा किस टाइप का होगा, एक स्ट्रिंग है ना, और इस डेटा के साथ ना आप कोई इमेज भी सेंड कर सकते हो, कोई फाइल भी सेंड कर सकते हो। अब लेट्स से आपने ना एक कस्टम टाइप या फिर आपने कस्टम enum बना रखा है फाइल का, लेट्स से, ठीक है। तो फाइल को छोड़ दो एक सेकंड के लिए, तो ये क्या एक फाइल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया ना, इस इम्प्लीमेंटेशन में डेटा एक स्ट्रिंग होना ही चाहिए और फाइल होनी ही चाहिए, बट यार एक ऐसा मैसेज भी तो हो सकता है ना जिसके अंदर कोई फाइल ही नहीं है, मतलब कि यार ये रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शनल होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ऑप्शनल कर सकते हो, तो इस तरह से हम ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल डेटा, तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। नल वैल्यू दैट मीन्स देयर इज नो वैल्यू इन लैंग्वेजेस विद नल वेरिएबल्स कैन ऑलवेज बी इन वन ऑफ द टू स्टेट्स, या तो वैल्यू नल होगी या नहीं होगी, ओके। In his 2009 presentation, Null references the $1 billion mistake. Tony Hoare, the inventor of Null, has to say. तो यार ये एक चीज़ पढ़ते हैं दैट जिसने नल बनाया वो क्या कहता है, I call it my $1 billion mistake. At that time, I was designing the first comprehensive type system for references in an object-oriented language. My goal was to ensure that all the use of references should be absolutely safe with checking performed automatically by the compiler. But I couldn't resist the temptation to put in a null reference simply because it was so easy to implement. This has led to innumerable errors, vulnerabilities, and system crashes, which have possibly caused $1 billion of pain and damage in last 40 years. The problem with the null values is that if you try to use a null value as a not null value, you will get an error of some kind because this null or non-null property is pervasive. It's extremely easy to make these kind of errors. तो यार देखो nulls को handle करना is very difficult. However, the concept of null is trying to express a still useful one. A null is a value that currently is invalid or absent for some reasons. The program isn't really with the concept. The problem isn't really with the concept, but with the particular implementation. As such, Rust does not have nulls. Rust के अंदर nulls होते ही नहीं है, but it does have enum that can encode the concept of value and of being present or absent. The enum option T has defined in the standard library. तो जो enum है ना ऑप्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, इसको जेनेरिक कहते हैं, ठीक है, इसको भूल जाओ अभी के लिए। या तो उसकी वैल्यू हो सकती है नन या सम। सम में आपको कुछ डेटा पास करना पड़ेगा, नन में आपको कोई डेटा पास ही नहीं करना पड़ेगा। द ऑप्शन enum इज सो यूजफुल दैट इट्स इवन इंक्लूडेड इन द प्रील्यूड, मतलब आपको इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू ब्रिंग इट इन द स्कोप. Its variant are also included in the prelude. That means you can use some or none directly without the namespace. मतलब कि इसकी जगह मैं डायरेक्टली ये भी कर सकता हूँ, पता है, सम वन, मुझे ना इसको नेम स्पेस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द प्रीलूड. ओके, द ऑप्शन टी enum is still a regular enum, sum and variants none. तो मतलब कि हमने एक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं उस पर नन वेरिएंट को कॉल करूँगा मतलब कि उस पर कोई भी वैल्यू नहीं है, एंड अगर मैं उस पर सम को कॉल करूँगा मतलब उसकी कुछ वैल्यू है. दिस इज हाउ आई कैन मेक एन ऑप्शनल वैल्यू इवन विद हैविंग सम डेटा. द टी सिंटैक्स जो ये है ना, ये एक जेनरिक है, ठीक है, ये जेनरिक टाइप है. इसके बारे में हम चैप्टर 10 में ही बात करेंगे. चैप्टर 10 में बहुत कुछ आई थिंक जो हम कवर करने वाले हैं. फॉर नाउ यू ऑल नो टू नेस टी मीन्स एनी काइंड ऑफ डेटा.
देखो यार, मैं इसमें नंबर भी डाल पा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली i32 बन जा रहा है। मैं इसके अंदर अगर ट्रू डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बूलियन बन जाएगा। अगर मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग डालूंगा, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम ओके ABC, तो वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो यू कैन सी दैट वो टी जो है ना वो एक जेनरिक है, इसका मतलब आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, जेनरिक वैल्यू है वो। इसका क्या मतलब है, दैट टी मेक्स ओवरऑल ऑप्शन अ डिफरेंट टाइप, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दैट आप इसमें एक नंबर डाल सकते हो, कैरेक्टर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टी। दिस सम नंबर इज ऑप्शन i32, इसका टाइप है ऑप्शन i32। सम इसका टाइप है ऑप्शन ऑफ टाइप कैरेक्टर, और लास्ट वाले का टाइप है ऑप्शन एज नन। तो ये एक नन है, लास्ट वाला क्या एक नन, ठीक है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो, इन शॉर्ट बिकॉज ऑप्शन टी वेयर टी कैन बी एनी टाइप आर डिफरेंट टाइप्स, द कंपाइलर वोंट लेट अस यूज ऑप्शन टी विद अ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ओपी का यहाँ पे टाइप के एक ऑप्शन जो एक i32 है। लेट से मैं यहाँ पर एक x बना लेता हूँ जिसका टाइप होगा 2, जो कि एक i32 है। तो मैं x में OP को प्लस नहीं कर सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो क्या बोल रहा है कि भाई ऑप्शन स्ट्रिंग को आप इंटीजर के साथ, एक ऑप्शन इंटीजर को इंटीजर के साथ प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट इन दिस कोड वी गेट एन एरर कि भाई एक ऑप्शन को तुम उससे प्लस नहीं कर सकते। इंटेंस इन इफेक्ट द एरर मैसेज मीन्स दैट रस्ट डजंट अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड एक इंटीजर विद एन ऑप्शन इंटीजर, ठीक है, बिकॉज दे आर डिफरेंट टाइप्स। When we have the value of type i8, the Rust compiler will ensure that always we have a valid value. If we can proceed confidently without having to check for the null value before using that value. Only when we have option i8, कहाँ गया मैं, डू वी हैव टू वरी अबाउट पॉसिबल ऑफ हैविंग नॉट ऑल। तो वो क्या क्या बोल रहा है कि यार अगर ये ऑप्शनल वैल्यू है ओपी, तो पहले आप चेक करो ना कि बिकॉज वो एक ऑप्शनल वैल्यू वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। इन अदर वर्ड्स यू विल हैव टू कन्वर्ट ऑप्शन टी टू टी, जहाँ पे टी क्या है आपका टाइप। तो इस केस में ऑप्शन ये टी है, टी मतलब i32, आपको इस ऑप्शन i32 को कन्वर्ट करना पड़ेगा i32 में, गॉट इट, बिफोर यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस, ठीक है। तो eliminating the risk of incorrectly assuming a not null value helps you to be more confident in your code. In order to have the value that can possibly be null, you must explicitly opt in to making the type of the value. तो थोड़ा ना इस बुक में ना ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब आई मीन जो चीज़ें एक वर्ड में एक्सप्लेन, एक लाइन में एक्सप्लेन की जा सकते हैं, उसके लिए पूरा पूरा पैराग्राफ है। देन व्हेन यू हैव टू यूज अ वैल्यू यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लिसिटली हैंडल द केस व्हेन द वैल्यू इज नल। एवरीवेयर द वैल्यू हैज़ टू बी has a type option t, you can safely assume that the value isn't null. This is a deliberate decision to limit nulls pervasiveness and increase the safety. Okay, so how do you get the t value? अब क्वेश्चन ये यार, ये t वैल्यू को एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करें, ये इसमें से i32 को एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यू कैन यूज़ द वैल्यू द ऑप्शन टी enum हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स दैट आर यूजफुल इन वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। यू कैन चेक आउट इट्स डॉक्यूमेंटेशन। बिकमिंग फेमिलियर विद द मेथड ऑप्शन विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल इन द जर्नी ऑफ रस्ट। तो अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हो तो देखो ये है एक enum, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन बना सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। हाँ, हम इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं फंक्शन दैट इज सम। तो फॉर एग्जाम्पल इज सम को यूज़ कर सकते हो अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन दिस विल नाउ रिटर्न अ बूलियन, राइट, ये एक बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है इसके ऊपर। अगर आप ऊपर जाते हो सम एंड इज सम एंड, ठीक है, आप एक क्लोजर फंक्शन भी पास कर सकते हो। इज नन वैल्यू भी है हमारे पास। एज रेफ यू कैन टेक इट, एंड एज म्यूटेबल रेफरेंस ले सकते हो, पिन रेफ, एज स्लाइस, और क्या क्या है हमारे पास, एज म्यूटेबल स्लाइस है, एक्सपेक्ट फंक्शन है, और क्या है, अनरैप। देखो रिटर्न्स द कंटेन्ड सम वैल्यू। अच्छा, तो मैं पता है क्या कर सकता हूँ, मैं इस सम में से ना डॉट अनरैप कर सकता हूँ। अनरैप मेरे को ना i32 देगा। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर प्लस करने का ट्राई करता हूँ, इसको हटा दो, ठीक है, आपके पास एक सम वैल्यू है और एक 1 है। लेट सम इक्वल्स x प्लस ओपी, तो हम कर ही नहीं सकते। तो एक काम करो ना, ओपी को ना अनरैप कर लो। अनरैप करने से क्या होगा, वो आपको वैल्यू दे देगा। अब आप सम कर पा रहे हो तो अब आप उसको println भी कर सकते हो, दैट सम इक्वल्स सम। ओके, तो हमने ये डॉक्यूमेंटेशन में से उठा लिया। इसको बंद करो, बंद क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब यू कैन सी अनरैप वैल्यू क्या करती है, हमें वैल्यू अनरैप करके दे देती है। तो यू कैन सी मेरे पास सम क्या आ रहा है 3। लेकिन अगर ये वैल्यू नन होती
व्हाट इफ अगर ये वैल्यू नन होती, ये वैल्यू है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अगर मैं इसको रन करूँगा मेरा कोड पैनिक कर गया, पैनिक हो गया। वो कह रहा है भाई एक नन में से मैं अनरैप नहीं कर सकता। तो मतलब अनरैप क्या करता है, रिटर्न्स द कंटेंट सम वैल्यू, बट पैनिक कर जाएगा अगर इसकी वैल्यू नन हुई। नाइस, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, यू शुड रीड। अनरैप और इसका मतलब है कि भाई इसको अनरैप करो, अगर नहीं मिलते तो अज्यूम कर लो ज़ीरो। तो अच्छा, अनरैप, मैं क्रैश नहीं करना चाहता प्रोग्राम को, तो अनरैप और ज़ीरो। तो अगर तो वैल्यू मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो ज़ीरो दे दो। तो देखो अभी सम 2 आ रहा है बिकॉज इसकी वैल्यू ज़ीरो मिली। लेकिन अगर ये एक वेरिएंट होता है सम विच इज़ वैल्यू 3, तो अब इसका आंसर आना चाहिए 5। सो ठीक है, देखो डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प कर रही है। और एल्स है, ठीक है, और एल्स एक क्लोजर फंक्शन लेता है। सो ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को बाद में पढ़ते हैं, है ना। सो बैक चलते हैं हमारी रस्ट बुक के ऊपर, एंड ये फिर मुझे ऊपर ले आया, ठीक है। तो इसको नीचे चलते हैं, कहाँ पे थे हम, तो ये हमने सब कवर कर लिया, बहुत ही बढ़िया। हम एक्सपर्ट हो रहे हैं, आप नोटिस करो, वी आर गेटिंग एक्सपर्ट इन रस्ट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया। इन जनरल इन ऑर्डर टू यूज ऑप्शन वैल्यू यू वांट सम कोड टू हैंडल ईच वेरिएंट, यू वांट सम कोड दैट विल ओनली रन व्हेन यू हैव सम वैल्यू, एंड द कोड इज नॉट अलाउड टू रन इनर टी इफ यू हैव, ओके। यू वांट सम अदर कोड टू रन ओनली इफ़ यू हैव अ नन वेरिएंट। तो यार यहाँ पर ना ये बता रहे हैं कि भाई एक मैच एक्सप्रेशन करके कुछ बहुत ही कमाल की चीज़ होती है जो आप यूज़ कर सकते हो, जो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर का मोटिव था टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द ऑप्शन इनम, इनम्स क्या होते हैं, इनम्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनम्स के अलग अलग तरीके डिफाइन करने के, एंड एक बिल्ट इन ऑप्शन इनम जिसमें दो वेरिएंट्स होते हैं, दैट इज सम एंड नन, ओके। सो विद दैट आई होप हमें इनम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं पैटर्न मैचिंग विद द मैच कीवर्ड। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।